Good morning, everyone. Today we are going to learn some basic ideas of object-oriented programming, that is object and class. Basically, the thing is that how to we create object and how to deal with this object. Hello, myself Santosh Kumar, Assistant Professor Computer Science Engineering in Global Institute of Technology, Jaipur. Now we are going to learn some basic ideas of object and classes. Let's start. These are the outlines. We are going to discuss these outlines. Basically, we are going to discuss what is object and what is class. Okay, then we are going to describe how to write private and public data members, then static and function members. Then we are going to discuss constructor. What is constructor? What are the type of constructor and what are the use of constructor? Why we are using constructor? Then as well as destructor. Then topic, that is operator overloading. What is operator overloading? Then last topic was type conversion. Okay, let's start with the basic example of object. Object is basically instance. What is instance? These all are the physical components, or that is called object. Like pen is a physical object, board is a physical object, laptop is a basically physical object, bike is a physical object, projector, bench, these all are physical object. But we are deal with logical object, how to create class with the help of object. These all are logical objects. Like we are taking some example. A person that attribute is name, age and weight, and these are the methods to access this object. Similar, car attributes, कार की क्या क्या attributes होते हैं? Company, color, fuel type, and these are the methods. What are the start types, how it drives, stop types, these all are methods. Then again, we are example of bank account. These are the attributes: account number, holder name, account type, or these are the methods. Basically, what is class? Class is a collection of object, or we can say class is the blueprint of object. What is blueprint? In next slides, we are going to discuss what is class, how to create class. Basically, these are the definition. Class describes the object. We can say this is the class of car because there is a no attribute mentioned here. There is a no attribute like manufacturer name, something like that. But in next slides, we can say these all are attributes. Car is a class, company is an attribute, model is an attribute, color of car is an attribute, manufacturing of year is an attribute, what are the price, this is also attribute, fuel type, maybe EV, petrol, diesel, fuel type. Again, these are the functions or methods: start type, drive type, park type, on break, on lock, U-turn. ठीक है, this is the basic example of class and object. We can say this is member, or this is called member function. This is object of class. कार की ये हो सकती है होंडा सिटी, Hyundai i20, सुमो ग्रांड. The main question is how to declare a class. Class को हम किस तरह से declare करते हैं, सबसे important चीज. First of all, we have to write class. That is nothing but that is keyword. We all know keyword is a fixed word. We cannot use keyword as a variable. So class is there is keyword. और there car क्या है यहाँ पे? कार जो है वो क्लास नेम है, जिस नाम से हमें क्लास क्रिएट करनी है वो है. देन दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन. कार वन यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है इन अबव एग्जांपल, क्लास नेम इज अ कार, मैंने पहले ही बताया. देन कार वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास है. ठीक है, दिस ऑल आर एग्जांपल हम पहले डिस्कस, ये हमारा क्या डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब बेसिक एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें बनती कैसे है.
ठीक है। मेनली स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत रहती है हाउ टू डिक्लेयर और राइट क्लास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम क्लास को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और क्लास को लिखते कैसे हैं। अगर क्लास बनाना आ गया इट मीन्स आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई, बहुत सिंपल है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं, हाउ टू एक्सेस मेंबर्स, जो डेटा मेंबर्स की बात कर रहा था उसको हम किस तरह से एक्सेस करते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दो टाइप से एक्सेस करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, ये देखो एक एग्जांपल लिया हमने, एज इट इज मैंने बताया दैट इज क्लास कार। ये कीवर्ड है। जब भी हमेशा हम कभी भी अगर मान लो क्लास बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्लास लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, क्लास नेम आएगी। ठीक है, देन करली ब्रेसेस ऑन होगी और करली ब्रेसेस क्लोज होगी, लास्ट में सेमीकोलन आएगा। ये एक सिंटेक्स होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। कौन कौन से डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक प्राइस बाय कास्ट इंटीजर हमने डिक्लेयर किया है, इट मींस प्राइस क्या है, इंटीजर है। और माइलेज को हमने बाय कास्ट क्या डिक्लेयर किया है, फ्लोट। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेटा मेंबर। ठीक है, और ये क्या है हमारा मेंबर फंक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है व्हाट इज डेटा मेंबर और व्हाट इज मेंबर फंक्शन। तो मैं फिर से बता दूं, ये क्या है, ये हमारा डेटा मेंबर है और ये क्या हमारा मेंबर फंक्शन है। ठीक है, तो क्लास को कुछ इस तरह से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में बताया गया है, पिक्चर के फॉर्म में। ये प्राइस क्या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, माइलेज क्या हमारा एट्रीब्यूट्स है, साथ ही साथ इसको हम डेटा मेंबर भी कहते हैं। देन ये हमारे मेथड्स हैं, स्टार्ट और ड्राइविंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम होती है, देन ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिस नाम से हम क्लास बनाना चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब हम क्लास बनाएंगे तो कोई भी अगर हम वेरिएबल नेम लेंगे तो वो कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कीवर्ड इज अ रिजर्व नेम, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल। ठीक है, सेम चीज इंटीजर, प्राइवेट, फ्लोट, माइलेज एंड देन स्टार्ट, ड्राइव। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, देन ये हमारी क्लास है। मैंने आपको बताया क्लास की सिंटेक्स क्या होती है। क्लास को हमेशा हम क्या करते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट में डिक्लेयर करते हैं। ये हमारा क्या हो गया बताओ, मेंबर। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गया, मेंबर फंक्शन। ठीक है ना, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कार को हमने किस नाम से क्रिएट कर दिया, C1 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, C1 के नाम से हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। अब जैसे ही हम C1 डॉट स्टार्ट को कॉल करेंगे तो ये वापस स्टार्ट नाम से जहां पे ये फंक्शन बनी होगी वहां पे जंप होके आ जाएगा। अभी इसके अंदर आप देखो कोई भी बॉडी हमने इंक्लूड नहीं की है, कोई भी हमने कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर, बस एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम तो नहीं कह सकते, सिंटैक्स है। ठीक है, देन अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास। ठीक है, क्लास टेस्ट। ठीक है, हैविंग डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर कौन कौन से होने चाहिए, मार्क होना चाहिए और एसपीआई होना चाहिए। तो डेटा मेंबर हमारे पास मार्क और एसपीआई होंगे। ठीक है, और जो मेंबर फंक्शन हम उसके अंदर यूज लेंगे वो होगा सेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस टाइप से होता है। तो हमें वी हैव टू क्रिएट, we have to construct a program where data members are marks and SPI and member functions are set data and display function. ठीक है, this is the example of program. We can clearly see that mark and SPI both are data member. ओके, और हम इसके अंदर देख सकते हैं हमने सेट डेटा नाम से एक मेंबर फंक्शन लिया है। ये हमारा क्या है, मेंबर फंक्शन है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम आखिर में एग्जीक्यूट होती कैसे है, किस तरह से चलता है। हमने पहली क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में ही,
सी प्रोग्रामिंग में कि विदाउट मेन फंक्शन देयर इज अ प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, जब भी प्रोग्राम्स होती है उसमें मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब आप देख लो, सबसे पहले एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, क्लास हमने बनाया है टेस्ट के नाम से, ठीक है, और क्लास की बॉडी यहां से यहां तक है। मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लास में हम लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन लगा दिया, इट मीन सिंटेक्स इसकी बिल्कुल प्रॉपर है। अब हमने प्राइवेट के अंदर मार्क और एसपीआई, ये दो हमने क्या किया है, डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं। देन एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है सेट डेटा। ठीक है, और मार्क नाम से जो वेरिएबल था उसके अंदर 270 को हमने क्या किया, स्टोर कर दिया, और एसपीआई के अंदर में 6.5 को स्टोर कर दिया। ठीक है, एक फंक्शन और है डिस्प्ले डेटा के नाम से, जिसके अंदर मार्क में जो वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, और जो एसपीआई के अंदर वैल्यू उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन प्रोग्राम में सबसे पहले क्या होगा, ये हेडर फाइल्स जो हैं, ये हेडर फाइल क्या हो जाएंगी, प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने किस नाम से क्रिएट कर लिया, O1 के नाम से। ठीक है, देन हमने लिखा O1 सेट डेटा। ठीक है, यहां पे क्या हो रही है, फंक्शन कॉल हो रही है। क्या हो रही है, फंक्शन कॉल हो रही है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। जैसे ही सेट डेटा नाम से फंक्शन कॉल होगी, प्रोग्राम कंट्रोल जंप होके इस पर्टिकुलर सेट डेटा पे आ जाएगा, ये यहां पे आ गया। ठीक है, देन ये क्या करेगा, 270 जो एक इंटीजर वैल्यू है उसको स्टोर कर जाएगा मार्क के अंदर। ठीक है, मार्क के अंदर 270 स्टोर होगी। ठीक है, और एसपीआई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, 6.5, क्योंकि आप देखो ये मार्क क्या थी, बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, और एसपीआई क्या है, फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, अब ये दोनों स्टोर हो गई, जहां से कॉल आई थी वो वापस वहां आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके नीचे क्या है, O1 डॉट डिस्प्ले डेटा, ये फंक्शन कॉल हो रही है। देन जो कंट्रोलर है वो जंप होके इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाएगा और क्या करेगा, सी आउट, इट मींस हमें कुछ प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, मार्क को प्रिंट करना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा, मार्क इक्वल टू, है ना, मार्क इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है मार्क इक्वल टू। ठीक है, और क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, मार्क की वैल्यू। मार्क की वैल्यू क्या है, 270, क्या प्रिंट हो जाएगी, 270। ठीक है, देन सी आउट एसपीआई, एसपीआई की वैल्यू क्या स्टोर हुई है, 6.5, तो क्या प्रिंट होगी, एसपीआई 6.5। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, डिस्प्ले, अभी डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा रिटर्न 0, क्योंकि फंक्शन जो मेन क्या है, मेन भी एक फंक्शन ही है, फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, बट हम कुछ वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं क्या फंक्शन में, नहीं ना, देन हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। ठीक है, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसको इस फॉर्म में बताया गया किस तरह से फंक्शन कॉलिंग हो रही है। ठीक है, और किस तरह से एसपीआई की मार्क की वैल्यू आई, एसपीआई की वैल्यू आई, और देन मार्क की वैल्यू प्रिंट हो गई और एसपीआई की वैल्यू प्रिंट हो गई। सेम चीज है, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया। देन मार्क की वैल्यू हमने यहाँ पे मार्क की वैल्यू ली है, वैल्यू दैट इज 270। ठीक है, और एसपीआई की वैल्यू क्या ली थी हमने, 6.5, ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्टोर हो जाती है। देन ऑब्जेक्ट 2 जब कॉल हुई थी, वहां पे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मार्क्स की वैल्यू क्या शो हुई थी, 270 एंड देन 6.5। राइट, सिंपल सा प्रोग्राम है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास कार। इट मींस हमें क्या करना है, कार क्रिएट करनी है। ठीक है, कार नाम से क्लास क्रिएट करनी है, जिसके अंदर डेटा मेंबर्स क्या होंगे, डेटा मेंबर्स होंगे कंपनी एंड टॉप स्पीड। कंपनी किस नेम से है, उसकी टॉप स्पीड क्या है, और मेंबर फंक्शंस क्या लेंगे हम, सेट डेटा, ठीक है, और डिस्प्ले डेटा, ये मेंबर फंक्शन होगा। राइट, ठीक है, अब हम प्रोग्राम पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, देखो
एक हमने क्या बनाया है, क्लास बनाई है कार के नाम से, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, क्लास यहां पे क्या है, कीवर्ड है, और कार क्या है, क्लास नेम है, ठीक है। और जो हमने क्लास बनाई है उसकी बॉडी यहां से यहां तक है, ठीक है। और लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाया, इट मीन सिंटेक्स बिल्कुल प्रॉपर है, सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हमने प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है कंपनी, जो कि एरे है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम साइज हमने 20 ले रखी है। देन इंटीजर टाइप टॉप स्पीड ली है, ठीक है। ये हमने दो डेटा मेंबर्स ले लिए हैं, ठीक है। देन हमने एक डेटा फंक्शन वो लिया, सेट डेटा, जो कि क्या है, एक मेंबर फंक्शन है। हमेशा ध्यान रखना, डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए मेंबर फंक्शंस की नीड होती है। बिना मेंबर फंक्शन के हम इस पर्टिकुलर डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, ये गोल्डन रूल होता है। देन हमने लिखा सी आउट एंटर कंपनी नेम, जो आप कंपनी का नाम एंटर करेंगे, देन कंपनी का नेम यहां पे आ जाएगा। देन एंटर टॉप स्पीड कितनी है, वो टॉप स्पीड के अंदर आ जाएगी, और उस पर्टिकुलर चीज को हमने डिस्प्ले कर दिया है। तो प्रोग्राम किस तरह से रन होता है, मैंने कहा था ऑलवेज कंपाइलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। तो कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आप मेन फंक्शन में आ जाइए। आगे मेन फंक्शन में जो भी हेडर फाइल्स होंगी वो इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। आईओ स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट होंगी, क्योंकि सी आउट और सी इन हमने यूज लिया है, आई स्ट्रीम तो होंगी, ठीक है। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, दैट इज कार O1। मैंने पहले बताया था, जो क्लास नेम है वो लिखेंगे, और देन जिस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किस नाम से किया है, O1 के नाम से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, ठीक है। O1 के नाम से हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। अब जैसे ही O1 डॉट सेट डेटा कॉल होगी, तो कंट्रोल सेट डेटा पे आ जाएगा, ये आ गया सेट डेटा पे। तो क्या होगा, सबसे पहले आपसे कंपनी का नेम पूछा जाएगा। इसका आउटपुट कंट्रोल कुछ इस तरह से होगा, आउटपुट कंसोल। आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले एंटर कंपनी, यहां पे ये डिस्प्ले हो जाएगी, एंटर, ठीक है, एंटर कंपनी। तो कंपनी सपोज करो आपने डाल दिया विप्रो, ठीक है। कंपनी का नेम आपने क्या किया, विप्रो डाल दिया। देन अगेन ये लाइन कंप्लीट होने के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंटर टॉप स्पीड, ठीक है। आपने लिख दिया एंटर टॉप स्पीड। यहां पे हम ऐसा करते हैं, विप्रो ना लेके हम किसी कार कंपनी का नाम लेते हैं, ठीक है। कार कंपनी का नाम ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉट अ एरर, ठीक है। हम यहां पे क्या करते हैं, कार कंपनी का नाम ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहां पे ले लिया टाटा, देश का लोहा, ठीक है। अब इसकी टॉप स्पीड सपोज करो हमने 220 दे दी, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास क्या है, कंपनी, इसके अंदर टाटा स्टोर हो जाएगा क्योंकि हमने टाटा डाला है, और दूसरी है टॉप अंडरस्कोर स्पीड, इसमें हमने 220 डाला है, ठीक है ना, ये स्टोर हो गया। अब जैसे ही ये कंप्लीट होगा, फिर इसके नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, दैट इज O1 डॉट डिस्प्ले डेटा, ठीक है। O1 डॉट डिस्प्ले डेटा, तो क्या होगी, ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगी, ठीक है। और क्या प्रिंट होगा, सी आउट, इट मींस वी हैव टू प्रिंट सम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज कंपनी, न्यू लाइन, इट मींस न्यू लाइन पे आ जाएंगे, और यहां क्या प्रिंट होगा, कंपनी। और कंपनी में क्या प्रिंट होगा, जो कंपनी के अंदर स्टोर है, क्या स्टोर किया था हमने, टाटा, क्या स्टोर हो जाएगी, टाटा, ठीक है। देन टॉप स्पीड क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले ये टॉप स्पीड प्रिंट होगी। अब यहां पे आप देखो स्लैश टी है, इट मीन स्पेस आएगा, यहां स्पेस नहीं तो मैं नीचे ही लिख देता हूं, टॉप स्पीड क्या डाली थी हमने, 220, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, इट मींस वी हैव टू राइट रिटर्न 0, ठीक है सिंपल बिल्कुल, बेसिक सा प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब एक प्रोग्राम और है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट इंप्लॉय हैविंग डेटा मेंबर्स, इंप्लॉय नेम एंड सैलरी एज। कोशिश करें, कैसे होगा, यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास इंप्लॉय, ठीक है, और
ये कुछ इस तरह से होगा, जैसा मैंने आपको बताया क्लास क्रिएट करने का ये सिंटैक्स है। देन यहां पे हमने लिखा प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट के अंदर हमें कौन कौन से मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करने हैं, हमने लिखा है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम हम एक एरे बना लेते हैं, कैरेक्टर टाइप एरे 30 लिख दिया, और यहां पे हम लिखते हैं सी कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर टाइप हमने डिक्लेयर किया। देन सैलरी, तो हमने लिखा सैलरी, ठीक है। सैलरी चूंकि क्या होगा, इंटीजर हो सकती है या फ्लोट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम इसको इंटीजर ही ले लेते हैं, ठीक है। या सैलरी हम फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है, फ्लोट ले लिया। देन हम एज ले लेते हैं, तो एज हमने ले लिया इंट, ठीक है। इंट के अंदर हमने लिख दिया एज, ठीक है। और इसके बाद हम पब्लिक सेक्शन के अंदर मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो मेंबर फंक्शन कौन कौन से बना रहे हैं हम, सेट डेटा और डिस्प्ले डेटा, देखते हैं इसके बाद प्रोग्राम में ही, ठीक है। देखो एक प्रोग्राम है बिल्कुल सिंपल सा, जैसा मैंने आपको बताया, यहां पे हमने एक्सेस स्पेसिफायर क्या यूज किया है, प्राइवेट। हमेशा ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे प्राइवेट ना लगाएं तो बाय डिफॉल्ट भी ये डेटा मेंबर्स क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। आगे और डिटेल में मैं समझाऊंगा विद एग्जांपल। तो यहां पे हमने नेम लिया है मैक्सिमम, एक नेम एरे है, कैरेक्टर टाइप एरे, जिसकी साइज कितनी है 10 है, और एक सैलरी ले ली है, और एक एज ले लिया, दोनों को हमने इंटीजर डिफाइन कर लिया है, ठीक है। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने क्या किया है, सेट डेटा नाम से एक मेंबर फंक्शन बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने लिखा सीन नेम सैलरी एज, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यूजर से लेनी है, इसलिए हमने सी यूज किया है। देन डिस्प्ले फंक्शन के अंदर इनको हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक सा प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है और क्लास यहां पे एंड हो रही है, लास्ट में सेमीकोलन है, इट मीन सिंटेक्स ट्रू है, सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट कहां से करते हैं हम, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन पे हम आते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में बताया। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग क्लास नेम है वो हम लिखते हैं। एग्जिस्टिंग क्लास नेम क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय। देन ऑब्जेक्ट को किस नाम से क्रिएट कर रहे हैं हम, ओ वन के नाम से, हम इस नाम से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले हम फंक्शन कॉल करेंगे, दैट इज o1 डॉट सेट डेटा, इस नाम से फंक्शन को कॉल किया। तो क्या होगा, क्या होगा, आपसे नेम और सैलरी और एज, ये तीन वेरिएबल्स लिए जाएंगे आपसे। नेम क्या है, कैरेक्टर टाइप है, तो कोई भी मैसेज नहीं आएगा, ये सबसे पहले ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, क्योंकि आपने इससे ऊपर कोई मैसेज डाला ही नहीं है। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं सी आउट प्लीज एंटर फॉलोइंग डिटेल, या प्लीज एंटर नेम सैलरी एंड एज, ये लिख सकते थे। आपने नहीं लिखा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, यहां पे कर्सर ब्लिंक होती रहेगी। क्योंकि प्रोग्राम में आपने नहीं लिखा तो आपको खुद को डालनी पड़ेगी, खुद के इंटेलिजेंस को यूज करके। अब आपको नेम डालनी है, तो आपने डाल दिया यहां पे, सपोज करो अमित, ओके, आपने यहां पे अमित डाल दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है सैलरी डालने को, तो सैलरी आपने इसकी एंटर कर दी 7000, ठीक है। और एज एंटर करनी है, दैट इज आपने एंटर कर दी एज 32, ये आपने एंटर कर दी है ना। तो नेम की जगह क्या आ गया, अमित आ गया। सैलरी कितनी आ गई 7000, और एज कितनी आ गई 32, ठीक है। ये आपने यूजर से ले लिया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देन हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे। डिस्प्ले फंक्शन जैसे कॉल करेंगे तो जो कंट्रोल है वो जंप होके इस पर्टिकुलर डिस्प्ले फंक्शन पे आ जाएगा, ये डिस्प्ले फंक्शन पे आ गया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, नेम, सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर देखो आप नेम लिखिए, तो नेम प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, नेम, क्या प्रिंट हो जाएगी, अमित, हो गई प्रिंट। देन डबल कोट्स में है सैलरी, सैलरी कितनी प्रिंट हो जाएगी 7000, ठीक है। और देन एज क्या प्रिंट हो जाएगी 32, ठीक है। सिंपल सा है प्रोग्राम। आई थिंक ये तीन प्रोग्राम्स के थ्रू आपको क्लास को कंस्ट्रक्ट करना आ गया होगा, किस तरह से हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं यूजिंग मेंबर फंक्शन, ये समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर्स क्या क्या कौन कौन से होते हैं। दो तरह के एक्सेस पायर होते हैं,
प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम क्विकली देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर यहां पे ये प्राइवेट मेंबर्स है, ये हमने डेटा मेंबर्स कौन से प्राइवेट डाले हैं। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास। मैंने अगर प्राइवेट डेटा मेंबर है तो विद इन अ क्लास अगर आपने मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया है तभी आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दे कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास फ्रॉम द अदर प्रोग्राम। आप आउटसाइड द क्लास अदर प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू ट्राई टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, कंपाइलर थ्रो एरर। मैंने बिल्कुल बताया आउटसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो डेटा मेंबर जो मेंबर फंक्शन है वो क्लास से बाहर आपने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, this is the very important features of ops that is called data hiding. yes important features है data hiding या encapsulation, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ओप्स का। ठीक है, क्योंकि जो जरूरत की चीजें वही शो होनी चाहिए, बाकी चीजें हाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल। देखो, प्राइवेट की तो बात हो गई है, पब्लिक की बात करते हैं। अगर हमने पब्लिक कीवर्ड यूज किया है, इट मींस जो फंक्शंस हैं और डेटा मेंबर हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? पब्लिक हो जाएंगे। ठीक है, पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द क्लास आर एक्सेसिबल बाय एनी प्रोग्राम फ्रॉम एनीवेयर। हम मतलब इसके डेटा मेंबर्स को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो मैंने आपको बताया अभी वो सारे पिक्टोरियल फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया। अब आप एक चीज देखिए, ये प्राइवेट एरिया जिसके अंदर डेटा और फंक्शन हमने डाले हैं, पब्लिक एरिया के अंदर भी डेटा फंक्शन डाले हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक फंक्शन देखते हैं। हमने यहाँ कार नाम से एक फंक्शन बनाया है, वो बनाया है। ठीक है, और इसके अंदर प्राइवेट हमने माइलेज लिखा है और फ्लोट के अंदर हमने क्या लिखा है? अपडेटेड माइलेज। ठीक है, और एक लिखा सेट डेटा। ठीक है, और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आई थिंक ये वैल्यूज वगैरह आएंगी, है ना। इसको प्रॉपर हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कट करो, कर दिया कट करो।